जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट से जुड़ी संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। I'll begin with a line of a song. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संगत जी, आज सुबह से गुरुजी ने अपने संदेशे भेजने शुरू कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर को बाहर हम एक बड़ी सी 9 फीट टॉल शिव जी की मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। आज उसका एक मिनिएचर वर्जन के फॉर्म में, उसके एक रेप्लिका के फॉर्म में शिव जी हमारे यहाँ पधार चुके हैं। तो संदेशा, जब कोई बड़ी इवेंट होनी होती है उससे पहले उसके छोटे संदेशे आने शुरू हो जाते हैं, तो वो आज शुरू हो गया और आज ही से यहाँ का माहौल बिल्कुल शिवमय हो गया। 12 बजे हमने उस मूर्ति, छोटी मूर्ति की अनवेलिंग की हॉल में, एंड जो हॉल में गूंज थी ना हर हर महादेव की, बिल्कुल शिवमय माहौल आज ही से शुरू हो गया। सो प्लीज़ पार्डन मी इफ़ आई अपीयर अ लिटिल इंटॉक्सिकेटेड टुडे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर मन में जो लाइन आई थी ना, इफ़ आई शेयर दैट, इट वॉज जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कि सोचिए कि ये मूर्ति अगर इतनी सुंदर है तो वो 9 फुट लंबी मूर्ति कितनी सुंदर होगी। और वो सोचकर आंखें भर आ रही थीं और फिर मन में एकदम से आया कि जिन्होंने गुरुजी को देखा है, जिन्होंने असल में उनको देखा है, उनसे पूछो कि कितने सुंदर थे वो। बिकॉज एज आंटी एंड अंकल, मैनी आंटी एंड अंकल विल टेल अस दैट उनकी चेहरे पर ऐसा नूर था कि उनको देखे, उनकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी कि लोग भाग भाग कर उनके पास आते थे। और जब चोला पहनकर वो आकर गद्दी पर बैठ जाते तो लोग कहते हैं कि ऐसी आभा की आंख उठती नहीं थी उनको देखने के लिए। कितना नूर, कितना सुंदर। सो हमारे शिव जी, हमारे गुरुजी महाराज अपने स्मॉलर फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं। 11 अक्टूबर को हम उनकी बड़ी मूर्ति की स्थापना करेंगे यहाँ पर। सो प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड बी हियर। अगर वो छोटी सी मूर्ति की अनवेलिंग could create so much of emotion in all the people here, सुनने वाला था वो हर हर महादेव की गूंज, कितना अच्छा लग रहा था। So imagine जब बाहर वो होगा तो कितना अच्छा लगेगा। So please do come for that. And before I speak further, I would like to now invite Sujata auntie, Rajni auntie and Divya auntie to share their satsangs. And then we have a little surprise for you too. Please come. Okay. The surprise, I'm told, I'd already announced the surprise. We have Kavita Podwal with us today. So she'll be performing and, well, rest of the surprise later. Please come, aunties. Aye. Jai Guruji. Jai Guruji, Jai Sangatji. It's so nice to see all of you here today. I didn't know I was going to speak today, so I'm a little nervous. So if I fumble, please excuse me. Anyway, I got connected with Guruji late 2019. A friend of ours who is a regular over here, she kept telling me about Guruji and how she's connected and how happy she is. So on a big Mahashivratri day, I went. Okay, she took me to the mandir at Okri Road, and I was really impressed with the discipline I saw over there. So much quietness, so much love, and the energy I felt was incredible. Oh, it was incredible. I was really impressed with that. Anyway, the food also was very exciting. After that came COVID, and then the temple opened over here, and I started coming quite regularly. What really drove me to this temple
is the energy that I felt from Guruji. And every time I came, it became stronger and stronger. And every time I came, it was so strong that I forgot everything negative about this world. I thought the world was a perfect place. So I used to come here quite often. Today, I want to thank Guruji for my lovely family, my sister, who is my right hand, my lovely daughter, my great son-in-law, and my little doll over there, and my other grandchildren. They are the love of my life. They fill my heart with so much joy that there is no place left for anything negative. Also, when I came over here, listening to the bhajans, really I wanted to, I would meditate a lot and keep away from all thoughts, but I wasn't able to do that. I'm trying so hard to forget everything and just, meditate, but I think it's something that will never happen. I try very hard and I probably, I may have accomplished 20%, but I've read about it and I don't think it's even possible to completely forget outside thoughts. Anyway, today I want to thank Guruji for bringing us in here, blessing us, showering us with his love and affection for all of us. Thank you, Guruji. Thank you, Sangat. Thank you, Auntie. So, Sangat ji, until the mics and all are ready for Kavita Podwal, as you know her, that she is Anuradha Podwal's daughter. And before we invite her on here, I would like to share a small little tale about our Guruji Maharaj. कहा जाता है कि आदि योगी जो हैं, महाशिव, शिव जी, हमारे गुरुजी, उनके पास एक बार सप्त ऋषि गए और उन्होंने कहा कि आपके 112 वेज हैं आपको पाने के, तो वो 112 पाथ्स जो हैं वो आप हमें सिखा दीजिए. सो आदि योगी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट द थिंग इज़ कि तुम्हें उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड इट इज़ अ लॉट. सो मैं हर एक को 16 वेज, 16 पाथ्स सिखा देता हूँ. तो सप्त ऋषि, सातों ऋषि ने एक 16 पाथ्स सीखे और इन डिफरेंट पाथ्स को लर्न करते हुए उन्हें 84 इयर्स की तपस्या लगी. शिव जी के पास रहते हुए उन्होंने 84 इयर्स, विच मीन्स अ लाइफ टाइम, दे स्पेंट देयर एंटायर लाइफ टाइम लिटरली लर्निंग दो 16, जस्ट 16 आउट ऑफ द 112. तो अब हर एक के पास 16 पाथ्स की नॉलेज थी. तो एक दिन शिव जी ने उन्हें बोला कि ठीक है, अब ऐसा करो कि उठो और जाओ, अब मैंने तुम्हें ये सारे सिखा दिए 112 पाथ्स, जाकर अब दुनिया में इसकी नॉलेज बांटो. तो सप्त ऋषि खड़े हुए और वो जाने लगे. जब वो जाने लगे, एकदम से पीछे से आदि योगी ने उन्हें आवाज़ लगाई और बोला कि रुको, मेरी गुरु दक्षिणा तो देते जाओ. जो 84 इयर्स से शिव जी के पास बैठे सिर्फ वो मेथड्स लर्न कर रहे थे, उनके पास वो 16 पाथ्स के सिवा कुछ भी नहीं था. दे हैड नथिंग अदर देन द नॉलेज दैट दे हैड एक्वायर्ड. दे हैड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. तो वो खड़े मुड़े और वो सोचने लगे कि हम क्या दे सकते हैं. तो उनमें जो सबसे सीनियर थे वो अगस्त्य मुनि थे. वो आए और उन्होंने आकर उनके चरणों में जो है अपने 16 पाथ्स को रख दिया आदि योगी के, और कहा कि जो मैंने सीखा मैंने सब आपको अर्पण किया. और उनको देखते हुए बाकी के 6 मुनियों ने भी अब जो भी सीखा, जो कुछ उनके पास था, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था, उन्होंने उसे शिव जी के चरणों में रख दिया और कहा कि हमने इसे आपको अर्पण किया. एंड आफ्टर दे डिड दैट, they were absolutely empty because there was nothing else that they had acquired. And उस emptiness में वो खड़े एकदम से बैठ गए. And आदि योगी smiled when he saw कि उन्होंने बिल्कुल सब खाली, एकदम खाली हो गए. और जब आदि योगी ने स्माइल किया, उस वक्त एक अलग सी एनर्जी क्रिएट हुई और उस एनर्जी से उन सभी 7 ऋषियों में all the 112 paths
they just grew through them. उनके अंदर अपने आप आ गए. जो उन्होंने अकेले में 16 सीखे थे, वो actually all 112 entered and started living through each of the Saptarishis. And then Adi Yogi said, अब जाओ, जाकर दुनिया में इन्हें बांट दो. So what do we understand from this? कि जब तक हम चीज़ को क्लास, we try to create a personality, our identity, we learn things, we have ideas, लेकिन वो ideas, वो identity जो बनाने में हम सालों लगा देते हैं, जब हम इनके चरणों में आकर बैठते हैं, we have to just leave all of that at his feet. वही वो बोलते थे गुरुजी कि अपनी ईगो, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ छोड़ दो उनके चरणों में, क्योंकि जब हम खाली होंगे, उनकी खुद की कैपेबिलिटी सिर्फ 16 पाथ्स को लर्न करने की थी, और इतने बड़े सप्त ऋषि होना, बहुत ऊंचे ऋषि, सिर्फ 16 पाथ एक एक लर्न कर सकता था, लेकिन खाली होने पे वो 112 पाथ्स कर पाए. They started living through them. So all we have to do is just empty ourselves. सब अर्पण कर दो गुरुजी को, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी कैपेबिलिटी हमारे अंदर वो क्रिएट कर देंगे जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं है. And we'll be able to achieve such heights which we had never imagined. So today, Sangat ji, let us invite Kavita Podwal auntie, who will be offering her talent in the feet of Guruji. Okay. Hello, check. Echo. Hello, check. Hello. इसकी वॉल्यूम नहीं आ रही, आईपैड की म्यूजिक वॉल्यूम. हेलो, check. हेलो. हेलो, चेक. एको बताओ. हेलो, चेक. हेलो. हेलो. हेलो, चेक. हेलो, हेलो, चेक. हेलो, चेक. जय गुरु जी. मैं 2 मिनट कुछ बोल लूँ, उसके बाद आई कैन स्टार्ट. Namaste, I'm Kavita Podwal, and I had the good fortune of visiting Guruji's Badi Mandir in Delhi just a couple of months ago. मेरे ध्यान में भी नहीं था कि उनके इस US वाले परिवार से इतने जल्द मुलाकात होगी. I think all saints have a way of bringing together people who are like-minded, people who seek inspiration from a common source. तो उनके चरणों में प्रणाम, और जिन शिव जी से हमारा संगीत है, उनके इस भजन से मैं शुरुआत करना चाहूँगी.
when a very close friend of mine who lives here, उन्होंने जब बताया कि ऐसे यहाँ पर भी गुरुजी का मंदिर बना है, तो आप चलेंगे? तो I said yeah absolutely, because for me it was another way of मुझे लगा कि उन्हीं की तरफ से आशीर्वाद देने के लिए न्योता आया है. So I'm very very grateful for today, and please all of you all feel free to sing along because that's what that satsang is. सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है. थोड़ा सा शार्प करेंगे. मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा. मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा. शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा. बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम. मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा. मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा. शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा. बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम. मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा. मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा. मुझे पीठ नहीं करनी इसलिए. पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई. पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई. राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई. शिव भक्ति में सब कुछ सूझा. शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा. बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम. मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा. मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा.
गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मुझे लगता है इस बार गुरुजी का कहना है मेरी तरफ मुंह करके गाओ, वहाँ पीठ हो तो कोई दिक्कत नहीं, सो प्लीज़ डोंट माइंड। We were not prepared for this, so I'm on a very, very, very short trip. I've been here for 3 days and I leave in the next 2. So जैसे मैंने कहा, for me it was just a way of coming here और यहाँ से आशीर्वाद मिले बस। So I hope गुरुजी के आशीर्वाद से अगली बार we'll be a little more prepared. हाँ जी, आई थिंक इस भजन को आप लोगों ने काफ़ी सुना है एंड यू सिंग, तो इट वुड बी नाइस इफ यू गाइस सिंग अलोंग। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
खाली था दामन उसे भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गुरुवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतनी हाज़िरी आप कबूल करें। लाइक आई सेड, this just happened, but very very kind of you to well kind of you to आप लोग अपनी किस्मत से यहाँ हैं, मैं भी अपनी किस्मत से यहाँ आई हूँ, बट थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। जय गुरु जी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। Sangat ji, join me in thanking her. To have performed at such short notice without any preparation, और गुरु जी के भगवान के दरबार में तो खैर everyone does that, it is सबसे बड़ा दरबार है, but thank you so much for doing this at such a short notice without any preparation. Next time definitely we'll be better prepared too. Thank you so much. So Sangat ji, now we are going to have Langar Prasad, और जैसे जैसे आपको सेवादार बताएंगे वैसे वैसे हम बैठेंगे, इस साइड पर सब लंगर करेंगे, और on my right, anyone who wants to do the Bartan Seva would sit on my right. So please sit here and now just follow as the Sevadars ask you to. इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।